Okay, so recording has started, and I will basically start from where I finished last time, 2 days ago, and let me share a document. Um, okay, okay, uh, so so in the last class we were discussing topical authority in the end, and basically in topical authority, what I basically said was that like there's domain authority, which is dependent on backlinks. Topical authority is basically dependent on how extensively and exhaustively you've discussed all subtopics in your website. So whatever niche or industry you're working in, have you covered all subtopics within that niche? And so for that, you have to make topic clusters. How every main topic is divided into subtopic. You do according keyword research, and then you produce content according to search intent. I discussed search intent in the last class. Tayyiba, did you understand search intent in the last class? Tayyiba, did you understand? Huh? सर थोड़ा थोड़ा समझ आया था। ठीक है। और समरा, आपको सर्च इंटेंट का कोई आइडिया है? समरा, आपको सर्च इंटेंट का आइडिया है? और ये थर्ड कौन आया अभी क्लास में? इंट्रोड्यूस कर दें प्लीज। ये अभी कौन आया है? ओके, मिशल। मिशल, यस। अस्सलाम वालेकुम मिशल। आपको आवाज आ रही है मिशल? हाँ मिशल, ये आपकी जी सर। मेरे ख्याल में आपकी फर्स्ट क्लास है। जी हाँ ठीक है। तो आपने पिछले क्लास की वीडियो देखी है मिशल? नहीं। नहीं। आपको एसईओ का कितना आइडिया है? आप किस बारे में बात करें? मैंने कहा एसईओ का आपको कोई आइडिया है पहले एसईओ के कॉन्सेप्ट्स का? जी है। है, चलो ठीक है। ओके देन विल कंटिन्यू। सो हाँ, तो मैं पूछा था सर्च इंटेंट का। तैयबा, आपको सर्च इंटेंट समझ आ गई थी पिछले क्लास में? हाँ तैयबा, आपको सर्च इंटेंट समझ आ गई थी पिछले क्लास में? तैयबा, आवाज आ रही है आपको? एनीवेज, समरा, आपको सर्च इंटेंट का आइडिया है? 4 टाइप्स ऑफ सर्च इंटेंट। समरा, नेविगेट। जी जी सर, आई थिंक ये वही है ना, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, बिल्कुल इस टाइप बिल्कुल के। आई थिंक बिल्कुल ये बिल्कुल चार बिल्कुल इंटेंट्स बिल्कुल होते हैं बिल्कुल हमारे पास। मैं मतलब बल्कि यूजर इंटेंट क्या है? बिल्कुल मैं वो जी जी। शेयर कर देता हूँ। सो okay, so basically there are 4 types of search intent: navigational intent, informational intent, commercial intent, and transactional intent. So informational intent is what is type, introductory type of keywords. Navigational is when you want to go to a specific page. What is Reddit login? Commercial intent is when users want to do research before making a purchase. Best coffee maker. And transactional intent is users want to complete a specific action. Buy Subaru Forester. So these are the um, basic four. Um, and and then so there's a buyer's journey. Um, in the marketing funnel, you're basically at either the awareness stage, consideration stage, conversion stage, or loyalty stage. And these are also known as top of the funnel, middle of the funnel, and bottom of the funnel. How top of the funnel? In the top of the funnel, you're exploring the industry, as in asking
putting in keywords as in what is, as in, what is dog food, or similarly, what are SEO tools. Middle of the funnel is when you write keywords like what is the best SEO tool, what is the best dog food in Lahore. Bottom of the funnel is when you've reached and you start asking questions about the particular product that you've chosen. So these are top of the funnel, middle of the funnel, and bottom of the funnel. And informational keywords, informational intent keywords are top of the funnel. Navigational and transactional are middle of the funnel, and commercial are bottom of the funnel. Um, and to define your target as customers, you can use Google uh, Analytics. You can increase brand awareness through inbound marketing. Then there are 3 C's of search intent. There's content type, content format, and content angle. In content type, basically the types of content are, it can be a blog post, it can be a video, it can be a product page, it can be a category page, it can be a landing page. In content format, basically it can be how-to guides, step-by-step tutorial, list post, or opinion pieces, reviews, content. In content angle, this refers to the specific focus or unique selling point. So basically, if you are selling a product, you have a unique selling point. There's something different about your product, which differentiates you, and that comes in content angle. Um, so so now let's come back to this, to topical authority, and so now you should know about the Google algorithm updates. In 2011 was the Panda algorithm update, and this was to make sure that low quality sites, are discouraged. Then in 2013 came the Hummingbird, um, and that is where semantic search started. In 2022 came the helpful content update, in which EEAT experience was added in EAT. Those who saw the first video, do you remember EEAT from the previous class video? तैयबा पिछले क्लास के वीडियो में EEAT मैंने डिस्कस किया था, वो आपको याद है? नो सर। पिछले वीडियो में मैंने EEAT की बात की थी. जी आपने बात तो की थी लेकिन मुझे याद नहीं। हाँ, समरा, आपको कुछ आइडिया है EEAT का? सर मुझे ऐसे सच अपने याद ही है। हाँ, ठीक है. So basically EEAT is used as a guideline by the Google algorithm to check the quality of content. Does the content have experience, expertise, authoritativeness, and trustworthiness? And by experience means that the person who's writing the content or the website, how much experience they have in that industry. Expertise means how much expertise, how are they experts in that particular niche industry. Authoritativeness means that whatever the content they write on the website, can you consider them an authority? And trustworthiness means, can you trust the content on their website? So these are 4 metrics which the Google algorithm used to check the quality of the content. And this helpful content update came in 2022. Then in 2023, another helpful content update came, and in which low quality content that appeared to be mass produced by AI, it was discouraged. In 2024, the helpful content ranking system was integrated into the Google score ranking system. So this is also in this. So topic clusters, in basically you divide the topic into the main topic and subtopics. And semantic SEO, I've done a class on that. We will. So
semantic search and why is semantic search important. So basically no, the different Google algorithms, knowledge graph, Hummingbird, Rank Brain, BERT, these are all algorithm updates. So this is an example of topic cluster. So if the main topic is Disney World planning, the subtopics are Disney World packing list, Disney World restaurants, budgeting for Disney World. So this is an example of a topical map which divides the topic cluster into the main topic and the subtopic. Any questions up till now? आपका कोई question हो इस पे अभी तक? कोई question? Sir, I have a question regarding EEAT. जी बिल्कुल. आपने बोला ना कि मतलब जैसे गूगल एल्गोरिथम्स हैं, हम किस तरह से मतलब ये चेक कर सकते हैं कि गूगल्स की जो अपडेट है वो जी क्या है रिगार्डिंग एसईओ? हाँ, वो आप गूगल पे सर्च करें, आप लिखें टेल मी अबाउट द लेटेस्ट गूगल एल्गोरिथम अपडेट, आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे. जैसे ये मैं आपको बताता हूँ. जैसे ये एक ब्लॉग है. अम, अ, ये एक सेमरश का ब्लॉग है. सेमरश जो टूल है उनका एक ब्लॉग का सेक्शन है, गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट एंड व्हाट टू डू अबाउट इट. ये जो कंटेंट अपडेट आया था 2024 में एल्गोरिथम में, ये इसमें पूरा इस ब्लॉग में एक्सप्लेन किया गया हुआ है. तो ये आप ब्लॉग्स में पढ़ सकती हैं, आपको सारा पता चल जाएगा कि एल्गोरिथम में क्या अपडेट आया है. ठीक हो गया, ठीक सही है हो ना. गया और सर, थैंक और यू। सिमिलरली यूट्यूब पे इतने फ्री वीडियोस हैं. ये जो लोग समझते हैं ना कि सिर्फ पेड कोर्सेज में इंसान सीखता है, इतने फ्री वीडियोस हैं. आपने बस यूट्यूब बार में लिखना है गूगल एल्गोरिथम अपडेट, आपको इतने फ्री वीडियोस मिलेंगी, आप खुद हैरान रह जाएंगी. तो ये आपने जरूर देखना है. ठीक है. और किसी का कोई क्वेश्चन अप टिल नाउ? नो सर। ठीक है. तो ये बार समरा दोनों को क्वेश्चंस नहीं है? जी सर, बस यही क्वेश्चन था मेरा। ठीक है. समरा आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, मैंने आपसे अभी यही क्वेश्चन किया, EEAT वाला जो आपने मुझे हाँ क्लियर कर दिया। हाँ बिल्कुल. मिशेल आपका कोई? मिशेल है अभी? नो सर, शी इज नॉट इन अ क्लास। चलो ठीक है, वो शायद चली गई हैं. ओके. तो ये सो बेसिकली ये मैं आपको बता रहा था. सर्च इंटेंट क्लियर हो गया? सर्च जी इंटेंट के. सर, उसका तो मुझे आइडिया है, तो वो मुझे ठीक हो है. गया और क्लियर। सर्च इंटेंट का मार्केटिंग फनल के साथ लिंक, ये क्लियर हो गया. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो कस्टमर है वो बेसिकली टॉप ऑफ द फनल पे होता है, मिडिल ऑफ द फनल या बॉटम ऑफ द फनल. टॉप ऑफ द फनल पे वो इस वक्त होता है जब वो एक्सप्लोर कर रहा होता है इंडस्ट्री के बारे में कि भाई कि व्हाट इज डॉग फूड, व्हाट एग्जैक्ट, या व्हाट आर एसईओ टूल्स. मिडिल ऑफ द फनल में वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, बेस्ट कौन होते हैं. और बॉटम ऑफ द फनल में वो आपके कंपनी तक पहुंच गया होता है और आपके प्रोडक्ट्स देख रहा होता है, और इस हिसाब से वो कीवर्ड्स लिख रहा होता है गूगल में. ये लिंक आपको समझ आई है सर्च इंटेंट और मार्केटिंग फनल में? जी जी बिल्कुल सर, ये मुझे समझ आ गई। हाँ चलो ठीक है ना, ये सही हो गया. थोड़ा सा अब हम बात करते हैं डोमेन अथॉरिटी पे. ठीक है ना. समरा आपको कोई आइडिया है डोमेन अथॉरिटी का? जी सर, आई थिंक इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है या जो हमारी प्रोडक्ट है वो किधर रैंक कर रही है, मतलब उसका लेवल क्या है। हाँ बेसिकली ये एक एसईओ टूल्स वालों ने एक मैट्रिक बनाया हुआ है कि जिसमें जी वो चेक करते हैं कि भी बाकी वेबसाइट्स के मुकाबले में एसईओ के हिसाब से क्वालिटी क्या है. ठीक है ना. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैकलिंक. यानी बैकलिंक का आपको आइडिया है ना समरा? जी सर, बैकलिंक का मुझे हाँ. आइडिया है। तो मैं आपको यही स्टार्ट में बताया था कि फ्री बैक लिंक्स जो है वो क्रिएट करना, और वो सारा हाँ मुझे पता है, तो लेकिन तो ये तो जो चीज है। अगर आपके वेबसाइट्स के पास बहुत बैकलिंक्स है ना, यानी बहुत और वेबसाइट्स आपको बैकलिंक्स दे रहे हैं,
तो आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई बैकलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं डोमेन अथॉरिटी में, ठीक है ना। एंड दूसरा है गेस्ट पोस्टिंग का, आपको आइडिया है समरा? जी सर, मैंने गेस्ट पोस्टिंग पे काम नहीं किया, लेकिन मुझे इस पे आइडिया है कि जैसे हम लाइक किसी और वेबसाइट के साथ अपनी वेबसाइट को एक तरह से लिंक कर रहे होते हैं कि जो यूजर नहीं है ना आप वो बेसिकली, हमारी। नहीं आप बेसिकली कंटेंट लिखते हैं, आप कोई आर्टिकल या ब्लॉग लिखते हैं उनकी वेबसाइट जी पे, जी जी। और एंड में अपना उसके लिंक दे थ्रू देते हैं। जो है वो हमारी वेबसाइट पे जो हाँ है वो आप अपना, यूजर आ रहा होता है। आप अपने वेबसाइट को मेंशन कर देते हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे जी देते जी। हैं, या एक बिग बाय बैक यूजिंग लिंक। लिंक्स। हाँ बाय लिंक्स, ठीक है ना। तो जी। गेस्ट पोस्टिंग एक अच्छा तरीका है बैक लिंक्स को क्रिएट करने का, ठीक है ना। तो ये बात है अभी। यस सर। हाँ तो ये भाई बात समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ आ रही है? यस सर। चलो गुड। तो गेस्ट पोस्ट जो है वो बैकलिंक्स के लिए बड़ा अच्छा होता है। एंड ये मैं आपके साथ ना ये डॉक्यूमेंट शेयर भी कर दूंगा कि आप इनको जो है ना लेकिन मजीद सर पढ़ मुझे लें। बैक लिंक का तो नहीं पता। बैकलिंक ये होता है बहन कि आप जब कोई और वेबसाइट लिंक दे दे अपने कंटेंट में आपकी वेबसाइट को, यानी वो लिख दें कि भी फॉर एग्जांपल अगर डॉग फूड पे है, वो कहें कि जी डॉग फूड पे इस वेबसाइट में ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, और वो लिंक दे देते हैं, और जो भी उस पर क्लिक करेगा वो आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा। इसे कहते हैं बैकलिंक। ठीक है। समझ आ गई? ठीक है। ठीक है ना। तो दूसरा चले मैं आपको ना अब थोड़ा सा कंटेंट मार्केटिंग में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बिकॉज आगे भी इस कोर्स में हम कंटेंट मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे। कुछ मेरे पहले भी वीडियोस हैं। आपको कुछ आइडिया है कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? आप दोनों में से समरा नो सर। तैयबा। तो नो सर। बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग ये होती है कि आप कैसे कंटेंट प्रोड्यूस करके मार्केट करते हो अपने प्रोडक्ट को, ठीक है ना। मतलब आप सोशल मीडिया पोस्ट लिख के भी आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप कोई वेबसाइट ब्लॉग लिख के भी कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप कोई यूट्यूब वीडियो बना के भी बेसिकली आप कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं ताकि लोग उसको देखें, उस कंटेंट से इम्प्रेस हों, और फिर आपके जो है ना वो वेबसाइट पे आए, ठीक है ना। सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये इस तरह है कि देखिए जैसे ना मैं तैयबा के लिए भी आई थिंक ये हेल्पफुल हो। जी जी जैसे मैं काम करती थी अगर रेंट ए कार पे, जी तो जी। अब जब मेरी वेबसाइट अगर वो रैंक नहीं हो रही तो फिर मैं बैकलिंक्स की तरफ आती थी। बिल्कुल। और वो बैकलिंक्स जो है वो एक पेज होता है ब्लॉग का, लेट सपोज अगर ब्लॉग का पेज है मेरे पास एक, तो मैं उसमें जो है वो अपना कंटेंट लिखती हूँ। ठीक और है। वो जो कंटेंट मैं लिखती हूँ ना, दैट इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि मैं उसमें रेंट ए कार में जितनी भी चीजें हैं, लाइक कार से रिलेटेड उसमें जितनी भी चीजें हैं मैं उनको मेंशन करती हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल वहां पे बिल्कुल आपका बैकलिंक भी क्लियर हो जाता है और जो कंटेंट मार्केटिंग है ना आपकी, वो भी आ बिल्कुल जाती बिल्कुल। है। कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली बेसिकली ये है कि आपने आम, कैसे कंटेंट लिख के लोगों को अट्रैक्ट करना है अपने वेबसाइट पे, अपने प्रोडक्ट को कैसे आपने एडवर्टाइज करना है। तो आपने बिल्कुल बड़ी समरा बड़ी अच्छी बात की। सो कंटेंट ऑडिट क्या है समरा? व्हाट इज कंटेंट ऑडिट? सर इसका मुझे नहीं आइडिया, कंटेंट कंटेंट ऑडिट ये ऑडिट का। होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई क्लाइंट कहता है कि जी ये मेरी वेबसाइट है, आपने इसकी एसईओ बेहतर करना है। एक होता है जी वो एसईओ तो ऑडिट, एसईओ ऑडिट, एक जी जी एक बिल्कुल। एक एसईओ ऑडिट होता है, कंटेंट ऑडिट भी होता है। ये कंटेंट, कंटेंट ऑडिट ये तो नहीं है कि जिसमें हम प्लेजरिज्म और अपने जो वर्ड्स की लिमिट है ये चीजें सारी चेक कर रहे नहीं होते हाँ, हैं? उसमें उसमें ये चीजें आती हैं, बट उसमें आप ओवरऑल कंटेंट की क्वालिटी में हर चीज देखते हैं। ठीक हो गया सर। आप ये देखते हैं कि भी क्या आपके कंटेंट जो आपके कंपेटिटर्स हैं, एक तो एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपेटिटर एनालिसिस, जी जी बिल्कुल। क्योंकि आप बेसिकली आपने रैंक कंपेटिटर से ऊपर ही करना होता है ना। जी तो सर बिल्कुल, इसका तो, आइडिया है मुझे। तो एसईओ ऑडिट में कंपेटिटर, एसईओ ऑडिट कंटेंट ऑडिट दोनों में कंपेटिटर एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि आपने देखना है कि क्या आपकी वेबसाइट की एसईओ आपके आपके कंपेटिटर से बेहतर है, और क्या आपकी कंटेंट क्वालिटी भी
कंपेटिटर से बेहतर है, आप तभी रैंक करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कंटेंट और एसईओ ऑडिट में अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करें, उनकी उनकी वेबसाइट चेक करें कि क्या उनकी वेबसाइट्स की एसईओ क्वालिटी कैसी है, वो कैसे कीवर्ड्स यूज करते हैं, वो कैसे बैकलिंक्स यूज करते हैं। तो ये भाई हैं अभी? यस सर। हाँ, तो ये भाई बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है ना। तो एसईओ ऑडिट और कंटेंट ऑडिट में कंपेटिटर एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप पहले देखें, अगर आपको किसी क्लाइंट ने कोई दिया है, आप सबसे पहले कंपेटिटर एनालिसिस करें, आप देखें आपके कंपेटिटर्स कौन है, किन के साथ आप कंपीट कर रहे हैं रैंकिंग में। समझ, ये बात समझ आ रही है? जी सर बिल्कुल। जैसे अब हम किसी भी वेबसाइट पे काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हम ये देख रहे होते हैं कि उन्होंने आखिर क्या क्या ऐसी चीजें अडॉप्ट की हुई हैं जिनको हम अपनी वेबसाइट पे भी यूज करके रैंक कर सकते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में एसईओ ऑडिट और कंटेंट ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपेटिटर एनालिसिस, क्योंकि आपने उन्हीं को ही आपने आउट रैंक करना है। और कंटेंट मार्केटिंग में कंटेंट ऑडिट जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ईमेल मार्केटिंग भी आती है कंटेंट मार्केटिंग में। आ, फिर केपीआई और आरओआई का आपको कोई आइडिया है समरा? सर ये दोनों हमारे पास परफॉर्मेंस फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे जो है वो हम चेक कर रहे होते हैं हमारी वेबसाइट रैंकिंग में क्या आ रहा है, और ये सारी चीजें मतलब ये परफॉर्मेंस की बेस पे होता है हमारी। चले, ये टाइम जो है वो 30 मिनट्स का होता है, ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह हम फिर 2 दिन बाद नेक्स्ट क्लास होगी, दरमियान में मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा, और आप ठीक है। 2 दिन बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी। ओके? चलें सर, ठीक है, ओके जी, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।